صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص باوضو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 12 کرامتیں عطا فرمائے گا، یعنی کہ 12 انعامات اسے ملیں گے۔ تو آپ سب لوگ باوضو ہو تو ایک بار پڑھ لیجئے پہلا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس سب سے بڑی نعمت اپنے دنیا میں، سب سے بڑی نعمت اپنے پاس کیا ہے؟ آخری دولت ہمارے پاس کا ایمان کی دولت، یہ دولت صحیح سلامت ہمارے ساتھ جانا چاہیے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤ دین و ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ مجھے مرنا ہے آقا سبز گنبد کے سائے میں، ہے نا۔ تو اب سب سے پہلے انعام کیا ملے گا اس کو کہ اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ پڑھیں گے نا باوضو پہلا کلمہ ہمیشہ یار۔ نمبر 2، اچھا موت کی تکلیف کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ اگر موت کی تکلیف کا خالی ایک قطرہ دنیا میں کہ اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس کی تکلیف سے دنیا کے سارے پہاڑ پگھل جائے، یہ تکلیف ہوتی قبر۔ مطلب بہت ساری موت کی سختی، جہاں جب روح نکال، یعنی کہ سرکار کے فرمان کے مطابق ایسا بھی ہے کہ ایک روئی کاٹن ہوتا ہے نا، کاٹن بہت سارا کاپوس، روئی کاپوس کپاس کاٹن، تو اندر اگر اس کے اندر کانٹے دار جھاڑی ڈال کے اگر اسے نکالا جائے تو خود نہ خود تو روئی باہر آ جائے گی نا۔ تو ایسی روح نکلنے کی تکلیف اتنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ موت کا ایک جھٹکا ہے، ایک جھٹکا ہے، سمجھ میں نا۔ تو کتنی تکلیف ہوگی موت کے وقت، مگر جو باوضو پہلا کلمہ پڑھے گا تو دوسری انعام، پہلا انعام تو کہ اسلام کے سے دنیا سے جائے گا، اور دوسرے کی جان کرنے کی سختی اس پر آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب انسان جب قبر میں جاتا ہے، مر گیا، روح نکل گئی، اب جب قبر میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا قسم سے میں نے ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی انجانی جگہ پہ کوئی اپنے کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے، کتنی گھبراہٹ ہوگی، کتنی وحشت ہوگی، کتنی دہشت ہوگی۔ اور قبر کے اندر اور لوگ جانے کی ٹاپ سنیں گے، اپن کوئی اپنے سے رکنے کو تیار نہیں رہے گا، ہے نا۔ سب فاتحہ وغیرہ کر کے قبر کے اندر ہم کو دفنا کے چلے جائیں گے، سب لوگ قبر کے اندر اپنے کو مرنے کے بعد ہم کو قبر میں دفنا کے، نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو، تو دفنا کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر قبر میں بندہ اکیلا رہے گا، اندھیری قبر میں، سمجھ میں نا بات۔ پھر اب ایسے میں دہشت بڑی بات کیا رہے گی کہ جیسے آسمان میں بجلی کڑکتی تو ہم یہاں پہ ڈر جاتے، مگر قبر کے اندر ہی بجلی کڑکنے جیسے نا دیوار کڑکے گی، بجلی کڑک سے زیادہ آواز رہے گی، تو کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ابھی لوگ 40 قدم چلے نہیں کہ آواز آئی، اور منکر نکیر 2 فرشتے آئیں گے، جو ہے تو ویسے خوبصورت لیکن وہ لوگ بھیانک بھیس میں آئیں گے، اتنے ڈراؤنے بھیس میں کہ جیسے زمین سے آسمان تک دکھیں گے، اور ان کی آنکھوں سے انگارے، نیلے نیلے شعلے، اور آنکھیں نیلی، اور بڑے بڑے بال زمین تک، عجیب خوفناک فرشتے رہیں گے۔ یعنی ایک تو اکیلے لوگ چھوڑ کے جا رہے، ہم نئی جگہ پہ پہلی دہشت پر ہے، اور دہشت ہے اس میں ایسی سونے بجلی کا کڑکنا، بجلی کی طرح دیوار کا کڑکنا، اس میں اتنے دو، اور محبت سے نہیں اٹھائیں، بولے اٹھ، جھڑک کر اٹھائیں گے قبر کے اندر، سمجھو۔ پھر 3 سوالات ہوں گے۔ تو یہاں پہ تیسری کرامت یہ لکھی ہے پہلے باوضو پہلا کلمہ پڑھنے کی، کہ اس کی قبر روشن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کی قبر روشن ہوگی، تو قبر روشن ہو چاہتے ہیں روشنی، لوگ ہم کو دفنا کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں ایسا کچھ نہیں، سمجھے۔ اور آپ بتاؤ، آپ لوگ نہیں بتانا، جو قبر میں فرشتے ہمارا حساب کتاب لیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ منکر نکیر۔ تو منکر نکیر حدیث پاک میں کیا لکھا ہے؟ 4تھا انعام اس کا رہے گا کہ منکر نکیر اس کے پاس اچھی صورت میں آئیں گے، سبحان اللہ، اس کے پاس اچھی صورت۔ تو پڑھیں گے نا پہلا کلمہ؟ چلو ماشاء اللہ، کتنی بار بھائی پڑھتے رہے، جتنا پڑھا کام ہے، اللہ کا جتنا ذکر کر کام ہے نا۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، سبحان اللہ۔ میرا دین ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، سبحان اللہ۔ اچھا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو حشر کا میدان بتایا تھا نا، تانبے کی دیکھتی زمین،
सूरज सवा नीचे पर आग बरसार होगा, दिमाग खोल होगा, जमा सूख कर लटक गई होगी, अल्लाह चाय प्यास की सदा लोग लगा रहे होंगे। उस वक्त बंदे का नाम अमल हाथ में दिया जाएगा। पढ़ो जिंदगी भर का नाम अमल, क्या क्या किया तुमने, एक एक चीज़। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फिर उस दिन तुमसे जर्रे के बाबत जो नेकी की वो भी तुमको दिखाई जाएगी, और जर्रे के बाबत जो तुमने गुनाह किए वो भी दिखाई जाएंगे। आयतों का मफहूम है ये, एक एक चीज़ हमको दिखा दी जाएगी। लेकिन जो नाम अमल जो दिया जाएगा ना, तो जो नेक होगा उसके सीधे हाथ में नाम अमल दिया जाएगा, और जो गुनहगार होगा उसके उल्टे हाथ में नाम अमल दिया जाएगा, और जो कुफ्र पे मरा है उसकी पीठ तोड़कर पीछे से नाम अमल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया लिखा है मालूम है, जो बावजूद पहला कलमा पड़ेगा उसको 12 करामत मिलेगी। तो 5वें नंबर पे लिखा है कि क़ियामत के दिन शहीदों की जमाअत के साथ उसको नाम अमल दिया जाएगा। समझे? फिर वहाँ पे क़यामत के दिन क्या होगा, सबके अमाल तोले जाएंगे, है ना, अमाल तोले जाएंगे। तो जो अमाल तोले जाएंगे तराजू का नाम रहेगा मीज़ान अमल। क्या रहेगा? उसमें सबको नेकी हो, तो जिसकी एक भी नेकी ज़्यादा रहे वो जन्नती, जिसमें एक भी गुनाह ज़्यादा रहे वो दोज़खी। तो अब क्या मतलब एक दूसरे नेकी छीनते रहेंगे। माँ बाप औलाद की, औलाद माँ बाप की, दोस्त की। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहेगा। माँ बाप औलाद, औलाद माँ बाप, दोस्त कोई किसी का नहीं रहेगा, सब अकेले, सब एक दूसरे। अल्लाह ताला इसने मेरे को गाली दिया 10 की नेकी मेरे को दे, इसने मेरे को मारा 10 की नेकी में वो दे, इसने मेरे को चिढ़ाया 10 की नेकी में दे। अब देखो माशाल्लाह अपना जो बच्चे ने जो दूसरे बच्चे को मारा था वो माफ़ी मांग के अपने आप को क़यामत के दिन के लिए बचा लिया। वो दहशतनाक मंजर थे, अपने को उस बच्चे से बचा लिया। अगर सबसे अगर माफ़ी मांग के बचा ले तो कितनी अच्छी बात है। और वो बच्चे के अल्लाह ने उस बच्चे पर ये करम फरमाया कि फ़ौरन उसको ये दिल उसका बदल दिया, फ़ौरन से जाके माफ़ी मांग के मुझसे आके माफ़ी मांगा उसने। समझे ना बात, जो मैं बात बता, तो फ़ौरन दिल अल्लाह ने उसका बदला। तो मेरे पास ये हो, अब क़यामत के दिन जो अब जिसकी नेकी का पल्ला भारी होगा वो तो बच गया, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे तराजू का वजन बढ़ जाता है तो नीचे होता है कि ऊपर होता है? और वहाँ पे जिसका भारी रहेगा उसका ऊपर होगा। तो अल्लाह ताला वहाँ भी हमारा भारी हो, नेकी का पल्ला और ऊपर हो जाए वहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है, जिसका मफहूम बता रहा हूँ, कि सरकार इस्लाम ने फरमाया जो बावजूद पहला कलमा पड़ेगा तो उसको 12 करामतें मिलेगी। तो 6ठे नंबर पर लिखा है कि मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा। सुभान अल्लाह। किसका? ऐसा नहीं, मेरे को नहीं, ऐसा बावजूद जो पहला कलमा पड़ेगा, समझे। अच्छा, दोज़ख के ऊपर एक पुल बनता है, इसको पुल सिरात कहते हैं, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। उसके आजू बाजू आंकड़े लगे, सबको खींच के फेंकेंगे। वहाँ उसमें से गुजर के जन्नत में जाना है, हर एक को जाना है। तो कैसे जाएंगे, है ना। कोई नमाजी रहेगा उसको मस्जिद लेके जाएगी, अलग अलग रिवायत है कैसे बिजली की तरह गुजर जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बावजूद पहला कलमा पढ़ता है उसको अल्लाह जो 12 करामत अता फरमाएगा। तो 7वें नंबर पर लिखा है कि वो पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा। और अकेले अकेले सब रहेंगे, कोई ना माँ बाप साथ है ना भाई बहन, वो कब गुजरेंगे पता नहीं, अब्बा का नंबर कब आएगा, अम्मी का नंबर कब आएगा, कौन पहले हो गया कौन बाद में हो गया, कोई किसी का को नहीं, सब अपना अपना रहेंगे सब। देखो, पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा। अब इस वाले बिजली का टाइम ठीक है, तो बिजली कड़कती थी ना, तो था उस टाइम मामला कुछ भी। 8वां नंबर, बंदा क़यामत के जो हिसाब किताब होते रहेगा ना, जब तक कि जन्नती नहीं हो जाएगा उसको टेंशन नहीं रहेगा कि दोज़खी ना हो जाओ, पता नहीं कौन आगे नेकी नहीं छीन ले हुए, पता नहीं कौन सी नेकी कहाँ ज़ाया हो जाए, पता नहीं कौन सी बात से अल्लाह नाराज़ हो गया। सब एक बार जन्नत का मुस्ता मिल गया, जन्नत में एक बार दाखिल हो गया ना, ख़त्म, हमारे वजूद का मकसद पूरा हो गया, मतलब ख़त्म हो गया बात एक बार। अब रिवायतों में आता है कि कुछ बंदे ऐसे भी रहेंगे जो जन्नत में दाखिल हो रहे रहेंगे, अचानक कोई महफिल आ जाएगी, जैसे अपनी महफिल है, अपन बैठे ऐसे या खड़े रह के बात करते या मुलाकात करते, कोई एक महफिल आएगी और कहेगी मौला इसको जन्नत में जाने से रोक दे क्योंकि इसमें उसने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र नहीं किया था, और वो जन्नत में आने से रोक दिया जाएगा। एकदम दाखिल होने वाला रहेगा, वो महफिल आके रोक देगी। हालांकि जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में आता है ना, तो ये 20 लाख वैसी महफिलों का कफ़ारा बन जाती है। हदीस पाक का मफ़हूम है 20 लाख वैसी महफिल का कफ़ारा हो जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे दोज़ख, जन्नत दोज़ख क्या मिलेगी उसका टेंशन, और दोज़ख कैसी दोज़ख, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर दोज़ख को सुई के नोक के बराबर में खोल दिया जाए तो सारी मखलूक जल के हलाक हो जाए, एक पल में सारी मखलूक हलाक
और दोजख में अगर डाल दिया जाए तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? कोई बोलेगा मैं अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करूँ तो काफिर हो जाएगा। कोई बोलेगा एक सेकंड के लिए बर्दाश्त करूँगा तो काफिर हो जाएगा। कोई बोलेगा एक सेकंड का जो करोड़वें हिस्सा होता है ना, करोड़वा, अगर उतना ही मैं बर्दाश्त करूँगा तो भी काफिर हो जाएगा। और आदाब थेरी की तो आदत होगी नहीं अभी। तो अल्लाह ताला दोजख से बचा के अच्छा दोजख में जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, है ना, या जन्नत या दोजख। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पहला कलमा बावजू पड़ेगा अल्लाह ताला उसको 12 करामत अता फरमाएगा। तो 8वें नंबर पर लिखा है कि उसके जिस्म को अल्लाह ताला दोजख पर हराम कर देगा। सुभान अल्लाह, है ना। तो दुनिया में बेवड़े लोग रहते हैं कि नहीं? क्या मिलता है बेवड़ा? क्या होता है बेवड़ा पीने से? शराब पीने से बदबूदार। अब ना बेवड़ा आदमी गिरेगा तो गटर में गिरेगा, कचरे में गिरेगा, देखना, है ना। जिस्म बर्बाद, लीवर बर्बाद। मेरे सामने कितने लोग लीवर की फटने से मरे, मैं देखा कितने लोग की मिसालें अपने आँख के सामने, अपने पहचान कितने वालों को, कितने लोग को देखा। बीच में लीवर खराब होते चला था ना शराब से। और इतनी बदबू रहती है शराब में। एक शराबी मेरी पीठ पे खाली हाथ रख दिया था, मेरे को उल्टी हो गई थी शराब से, इतनी बदबू। अब बॉडी खराब, फ्यूचर खराब, दुनिया वाले नाराज, फरिश्ते नाराज, उसके रसूल नाराज, अल्लाह ताला नाराज, सब नाराज, अल्लाह के रसूल नाराज, खुद शैतान, आखिरत बर्बाद, दुनिया बर्बाद, फ्यूचर बर्बाद। अच्छा क्या हुआ शराब पीने से? भाई बहुत टेंशन था तो टेंशन के शराब पी लिया तो होश आया तो टेंशन खत्म हो गया। अबे टेंशन था तो अल्लाह का जिक्र करता, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता, टेंशन दूर हो जाता, अल्लाह ताला मुसीबत दूर कर देता। हाँ, मुसीबत। लेकिन क्या शराब पीने से टेंशन खत्म हो गया और टेंशन बढ़ा तेरा और बेइज्जती हुई तेरी और नाराज कर दिया। पहले गुट में फरिश्तों की लानत होती है, दूसरे गुट में फरिश्ते अल्लाह के रसूल की लानत होती है, तीसरे गुट में अल्लाह की लानत होती है, ऐसा कुछ है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सरकार के ऐसे खादिम साबित थे कि सरकार को उठाने की जिम्मेदारी इन पर थी। और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आला हज़रत फरमाते कि मेरे इमाम आज़म के इमाम आज़म। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी शराबी का इंतकाल हो जाए, किसी शराबी का इंतकाल हो जाए तो पहले तो मुझे तुम कैद में ले लो, मैं भागूंगा नहीं, पहले मुझे कैद में ले लो और उसको दफनाने के बाद उसकी कब्र खोदो, अगर उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ ना पाओ तो मुझे कत्ल कर देना, तो मुझे कत्ल कर देना। मुझे तो तुम कैद में रखे, भाग तो सकता नहीं, उसको खोद के देखना, उसका चेहरा काबे से फिरा हुआ ना पाओ तो मुझे। अगर किसी शराबी का अगर जैसा चेहरा फेरा जाएगा तो क्या ऐसा वापस कर पाएगा वो? वहीं पे उस पर लानत है, वो खुद तक सोचेगा कि यार मैं दुनिया कैसी बर्बाद करके आ गया, है ना। तो अल्लाह ताला दुनिया की शराब से हमको बचाए। ये दुनिया की शराब नहीं, शराब हर पीने वाली चीज़ बोलते हैं। ये शर और आब है। शर यानी बुराइयाँ और आब यानी पानी, ये बुरा पानी है। अल्लाह ताला हमको जन्नत की शराब अता करे। कुरान शरीफ में उसका जिक्र है जिसमें नशा भी नहीं, बीमारी भी नहीं, खाली मज़ा ही मज़ा है। उसका नाम है शराब तहूरा, शराब तहूर, कुरान शरीफ में उसका जिक्र है। तो अब यहाँ जो लिखा है कि जो बावजूद पहला कलमा पड़ेगा अल्लाह ताला उसको 12 करामत अता फरमाएगा। तो 9 नंबर पे लिखा है कि वो शराब तहूर से शराब किया जाएगा। तो ये शराब चाहिए कि वो शराब चाहिए? हाँ, जन्नत में वो शराब हर पीने वाली चीज़ बोलते, शरबत शराब। सल्लु अलल हबीब, सल्लु। बेटा हदीस के टाइम में हंसने का नहीं, तौहीन हो जाती है। हाँ? और हर एक को कोई गलती का तो फ़ौरन हंसना भी नहीं चाहिए, कभी वो अपनी जिल्लत महसूस किया तो। अच्छा, जन्नत में उसको 70 हूरें मिलेंगी। एक खूबसूरत औरत जैसी कोई रहती, खूबसूरत, वो नूर से रहती, तो उसको उससे शादी होगी वहाँ पे 70 हुरों से। ये अलग सवाल है बेटा, ठीक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसको नसीब होगी। सुभान अल्लाह। शफाअत सी ना सरकार की। तो कितना हो गया टोटल? 11। अब 12वां कल बताता हूँ, है ना। बहुत अच्छा है। सबसे हार्ड वही है, कल बताता हूँ। अच्छा, इस्तेमाल में लाओगे पाबंदी से? 12 हफ्ते इस्तेमाल में आओगे? 12 करामत बताए हो। अल्लाह की रजा के लिए 12 इस्तेमाल में पाबंदी से आओगे? अल्लाह की रजा के लिए जान हाजिर है। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको 12 करूँ मैं। कौन कौन 12 हफ्ते इस्तेमाल आने की नियत करता है पाबंदी से? अल्लाह की रजा के लिए। मर जाएंगे सब, अपना हम अपना सब खत्म हो जाएगा दुनिया में यार, वही से हकीकत उसके लिए जिंदा। ऐसे ऐसे हाल रख रहे, ऐसा ऐसा। हाँ,
तुम नियत किए तुमको 100 मिल जाएगा, इसलिए बोला अमल करता वो नियत पर है। हाथ नीचे करो। चलो 12 क्या बोले, कुछ भी पढ़ ले, मत पढ़ो, नहीं उर्दू बोलो ना, अमल का दाना मतलब नियत पढ़ो, खाली इतना इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब तुम कुछ हदीस है ना बेटा। अच्छा 12 नंबर ये है, जो पहला कलमा बावजू पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 12 इनामात अता फरमाएगा। और 12 नंबर ये है कि उसे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।